If you are a NEET aspirant, you don't want to miss this video. अगर आप next NEET की तैयारी कर रहे हैं and even if you have less than 6 months remaining in your hand, doesn't matter if you are a fresher, a dropper or a backbencher who is scoring right now less than 250 marks out of 720 in the mock test, or you are a front bencher who is scoring more than 700 marks right now in the mock test. This video is meant to serve as your NEET preparation guide, which will not only help you to score good marks in your NEET, but to ace your exams and get a top-ranked government medical college and even AIIMS like I did way back in 2019. I am Sumit Vanzari, currently an MBBS intern in AIIMS Nagpur. 2019 में मैंने अपनी NEET UG and AIIMS UG फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी ड्रॉप के क्रैक कर ली थी with an all India rank of 1070 in general category. My rank is now equivalent to more than 700 marks out of 720 according to the current NEET trends. And I am the perfect person to give you this advice. ये वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जो आप 5 मिनट में सुन के भूल जाओगे. This video might be a life-changing video for any one of you. I am assuming that if you have clicked on this video, you want to score good in your NEET examination. और अगर आप नेक्स्ट 8 से 10 मिनट के लिए भी ये वीडियो कंसंट्रेशन से नहीं देख पाते तो आप अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट का सपना तो भूल ही जाइए. सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और इस वीडियो में दी गई सारी टिप्स को आप फॉलो कीजिए एंड आई गारंटी यू दैट यू कैन इवन स्कोर मोर देन 700 प्लस मार्क्स आफ्टर फॉलोइंग द एडवाइसेस दैट आई गिव यू इन दिस वीडियो. सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है इज टू रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस दैट आर डिस्टर्बिंग यू फ्रॉम scoring good in your NEET exams. And the topmost distraction in every student's life right now is social media. ये जो भी सोशल मीडिया एप्स है चीप डोपामिन सोर्सेस है. तुम लोग ही सोच के देखो, अगर आप 1 मिनट की रील को भी पूरा नहीं देख पाते, उसे स्क्रॉल करते रहते हो, तो 180 क्वेश्चंस को 3 घंटे में सॉल्व करने का सपना तो दूर दूर तक मत ही देखो. ये टिप आपने सब लोगों से सुनी होगी पर इम्प्लीमेंट कभी नहीं की होगी. आई एम गिविंग यू अ गोल्डन मोमेंट राइट नाउ. Pause this video right now and delete every social media app from your phone which is not essential for your NEET preparation. Whether it may be Facebook, Instagram, WhatsApp and even YouTube if necessary, delete all of them and also delete all the video games that you are playing in your phone right now. मेरे पास 11th-12th में कोई फ़ोन नहीं था and I did pretty well. The only purpose जिसके लिए आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं is to download study material for your NEET preparation, watch video lectures for your NEET preparation or to solve any of your doubts जो आपको आते हैं जब आप आपका पेपर सॉल्व करते हैं. The next distraction is so called friends. If your friends are studious, then you will also become studious. If your friends are distracting you from your studies, you need to leave your friends. Once 11th-12th is finished, भाई कोई किसी का दोस्त नहीं रहने वाला. तो ऐसे दोस्त चूज करो जो कि आपको स्टडी में हेल्प करे, जो आपके साथ मिलकर स्टडी करे. एंड आई विल एडवाइस यू टू फॉर्म अ स्टडी ग्रुप एंड दिस स्टडी ग्रुप शुड बी अ जेंडर स्पेसिफिक स्टडी ग्रुप, आइदर ऑल बॉयज और ऑल गर्ल्स. मिक्स स्टडी ग्रुप विल लीड टू समथिंग एल्स eventually. Moving on to the next part of this discussion, जो कि इस डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, and that is to complete your syllabus. अब आप पूछोगे कि 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में सिलेबस के लिए कितना टाइम दिया जाए, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है कंप्लीट करने को एंड द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन गिव टू कंप्लीट योर कंप्लीट सिलेबस इज 4 मंथ्स. अब आप बोलोगे कि 4 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ पाना 2 से 3 बार तो इम्पॉसिबल है, तो 700 प्लस के स्कोर को भी भूल जाओ, नहीं मिलेगा. लास्ट डे तक सिलेबस पढ़ते रहो और एग्जाम देने के दिन भी सिलेबस पढ़ते रहना. Only if you are a fresher, आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है and you have more than 1.5 to 2 years remaining for your NEET exam, then you can afford to spend time covering your syllabus and you can cover your syllabus within a span of 12 months. You have 3 subjects जो कि आपको पढ़ने हैं: biology, chemistry and physics. And there is different way to read all the 3 subjects. For biology, you have to read only and only NCERT, class 11th and 12th. अगर इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ते हो एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, देन आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा. नेक्स्ट अप वी विल टॉक अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन बायोलॉजी. इसमें आपको 20 बार एक ही चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ के उस पर 20 अलग अलग तरीके के MCQs सॉल्व करने की जरूरत है. सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट वंस और ट्वाइस. फिजिक्स हार्ड लगता है ना, मैक्सिमम लोगों को मैथ्स नहीं चाहिए था इसलिए आपने डॉक्टर बनना चूज किया. अब मैथ्स नहीं चाहिए था तो फिजिक्स तो पूरा मैथ्स ही है.
अब मैथ्स नहीं चाहिए तो फिजिक्स हार्ड लगेगा तो हम कम पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी कम मार्क आएंगे। एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ टॉपर एंड अ ड्रॉपर। यू हैव टू गिव ample amount of time solving physics MCQs. Moving on to chemistry, इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको पूरी तरह से मगअप करने पड़ेंगे और कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको MCQ सॉल्व करना पड़ेगा एंड कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको कंसेप्चुअली समझ लेना होगा। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ मगिंग अप फ्रॉम बायोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड सॉल्विंग MCQs फ्रॉम फिजिक्स। अब सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, पर इसके ऊपर अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपका सिलेबस पढ़ना तो वेस्ट है। मान लीजिए आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है बायोलॉजी में, उसके ऊपर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट इज PYQ पूरे सॉल्व कर लेने हैं। एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके ऊपर आप देंगे एक टॉपिक वाइज टेस्ट। सिमिलरली 3 और 4 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड दिस यू कैन क्लब विद अदर सब्जेक्ट्स 3 और 4 चैप्टर्स फ्रॉम like biology 3-4 chapters, physics 3-4 chapters and chemistry 3-4 chapters, and इनको combine करके आप देंगे एक grand test. We will follow a rule of 5 for designing our revision schedule for each subject. The rule of 5 is like 5 times you have to revise the subject physics, 10 times you have to revise the subject chemistry, and 15 times you have to revise the subject biology. कैसे करना है, क्या करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, लेकिन एग्जाम के पहले इतनी बार तो आपको आपके सारे फॉर्मूलाज फ्रॉम फिजिक्स, सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स एंड बायोलॉजी का हर एक वर्ड एंड टेक्स्ट जितनी बार मैंने बताया उतनी बार तो रिवाइज करके जाना ही है। अगर इससे कम होता है तो आपका स्कोर 700 से कम जाएगा ही जाएगा। अब कुछ लोग सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम देने के टाइम ब्लंडर करते हैं। फॉर दिस यू हैव टू गिव ग्रैंड टेस्ट। माई एडवाइस टू यू इज दैट अगर आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं तो पहले दिन आप जाइए और एक ग्रैंड टेस्ट दीजिए। आप देखिए उसमें आपको कितने नंबर मिलते हैं। आफ्टर ईच 5 days you give a grand test and analyze your mistakes from this grand test, और आपका स्कोर एक चार्ट पे नोट करते जाइए। Each time your score should increase. Now you are scoring 250, next time your target should be of 300. If you are scoring 400 right now, next time your target should be of 450. अगर आप 650 अब स्कोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको 10 मार्क इस स्कोर से ज्यादा स्कोर करना है। अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आपकी ग्रैंड टेस्ट का कि आपने कहाँ गलती की है। क्या आप वो एक कैलकुलेशन एरर था, क्या एक सिली मिस्टेक थी, क्या OMR भरने में आपने गलती की, या फिर आपको कंसेप्ट नहीं समझा था, या फिर आपने क्वेश्चन समझने में ही गलती कर दी। कई तरीके हो सकते हैं। आई विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम, यू हैव टू मैनेज दैट ऑन योर ओन, बट आपको हर बार हर ग्रैंड टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करना है। नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं एंड इसी की वजह से उनका 700 का सपना तो दूर दूर तक कंप्लीट नहीं होता है। द फर्स्ट वन इज योर हेल्थ। नीट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। आपकी हेल्थ किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन के वक्त स्ट्रेस आ रहा है, आपसे प्रिपरेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आपको सहा नहीं जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए प्रिपरेशन। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है अदर दैन MBBS, बट आपकी हेल्थ आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो आपको आपकी हेल्थ का पहले ख्याल रखना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो खुद बीमार है वो दूसरे पेशेंट्स को नहीं ट्रीट कर सकता। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज focusing on your health. For that you have to eat healthy, follow healthy practices, yoga, pranayam, ये सब आप कर सकते हैं। You can meditate daily, and the most important thing is to have adequate sleep. Minimum sleep that a NEET aspirant should have is 7 hours. Hands down, अगर आप उससे कम सोते हैं तो आपके माइंड पे हैम्पर होगा ही होगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कम होगी। You don't need to study 24 hours to get 700 plus, but you need to sleep 7 hours daily to get 700 plus. I myself used to sleep 7 hours daily. अगर कभी कम हो जाए तो 6 घंटा तो मैं रोज सोता ही था। If you are compromising your sleep for your studies, that is detrimental. You don't compromise your sleep for your studies, you compromise on your distractions for your studies. Another important point in maintaining your health is exercise. Exercise for at least 30 to 45 minutes daily. Exercise आपको बस healthy ही नहीं रखेगा, but it is proven that high intensity exercise for 30 to 45 minutes daily improves your memory and your thinking skills by increasing the blood circulation in your brain. The last tip that I will give you is to manage your time accordingly. You have to give time to your parents, talk to your family daily and prepare simultaneously. Time management आपको आना चाहिए। आपको दिन में 7 घंटे सोना है,
ट्यूशन क्लासेस अगर आपकी होगी तो ट्यूशन क्लासेस जाना है, इसके साथ साथ ग्रैंड टेस्ट भी देनी है, इसके साथ साथ पढ़ना भी है, एंड दैट टू विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। आई एम सॉरी, पूरी नीट स्ट्रेटजी एक वीडियो में बता पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बट आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू गो डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड राइट अ रिक्वेस्ट to make a video on certain topic, I will surely make the video on that topic. In return, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है उन सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। If you want to know how I cracked NEET and how was my NEET journey, click on this video.